Part 3 of the chapter number 4 of Mohit Bhattacharya ji's book New Horizons of Public Administration. So far we have already studied the scientific administration, scientific management of Taylor. Now moving ahead, so we are now on the part 3rd, approaches, principles and theories, and let us begin our lecture. You all are welcome. Classical theory of management, scientific management. Earlier what we have studied, that has a narrow conceived focused. उसका जो फोकस था बहुत कम था. उसका फोकस क्या था? उसका फोकस मेनली था कि कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, कैसे आपका ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए ऑर्गेनाइजेशन को, और वो भी किस ऑपरेटिव लेवल पे. ऑपरेटिव लेवल पे मतलब है कि जहां पर शॉप फ्लोर लेवल है, शॉप फ्लोर लेवल पे जहां पर कारीगर काम कर रहे हैं, पीपल where they are working, maybe assembly lining, maybe a textile company or tailors are sitting over there. So in the first half of the 20th century, in 1910, 12, 20s at that time, एक और अप्रोच आ रही थी, इनिशिएट हो रही थी. सो ये जो अप्रोच है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट से थोड़ी अलग थी, एंड Herbert Simon and March have characterized this body of knowledge as administrative management theory. So AMT, administrative management theory. और इनको इन्होंने डिपार्टमेंटलिस्ट भी कहा, क्योंकि डिपार्टमेंटलाइजेशन करने पे भी इनका ज्यादा जोर था. ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल और या फिर क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी. सो यू रिमेंबर when if there is a question and question is using these different words, so do not get confused. Traditional, classical, administrative management theory is all same. साथ में बात करें तो वुडरो विल्सन, साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर. वुडरो विल्सन, साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर एंड डिपार्टमेंटलिस्ट जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी वाले लोग, ये ही क्लासिकल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर बनते हैं और ये प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट और स्ट्रक्चर्स के बारे में, पर्टिकुलरली हायरार्की के थ्रू यू कैन अटेन, बाय यूज ऑफ हायरार्की यू कैन अटेन अटेनमेंट ऑफ गोल्स. अटेनमेंट्स ऑफ गोल्स हो सकता है, अटेनमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन हो सकता है, यूज ऑफ हायरार्की. ये इनका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था. साथ में वेबर, मैक्स वेबर इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सेम क्लासिकल अप्रोच. सो क्लासिकल अप्रोच इज वेबर, इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, इज डिपार्टमेंटलिस्ट, राइट, ऑल टुगेदर. ये है आपका मेटा थिंग, क्लासिकल अप्रोच. सो वेबर इज देयर in this, number 1. Number 2, scientific management is also there, and number 3, the administrative management theorist, right? ये सारे ही हैं यहां पर. So you see over here, Woodrow Wilson is here, then Weber is here. Okay, so public administration optional, we are having classes, and do remember 31 मई है आपकी आखिरी तारीख बैच में इनरोल करने की, बैच 2 और 2024. साथ में आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे ये एडमिशन सिक्योर करने का मौका मिल रहा है. यूज कोड SC Live, that is the initials of my name, Shekhar Chaudhary, SC Live, right? And you will be having classes at 1 p.m. up to 4 and we will be having previous years के questions का discussion, answer writing session, live answer writing session. I give handwritten notes in that, handwritten answers by me, model answers, crux and much more. So ensure your admission over here and ensure your rank in the final merit list. So do remember 31st of May, जल्दी से एडमिशन ले लीजिए. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की मेंस टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, और ध्यान रखिएगा बहुत ही कम दाम पे. यू हैव टू यूज कोड SC Live. सो ये है 11 जून से वी आर स्टार्टिंग इट अगेन. SC Live शेखर चौधरी का इनिशियल्स, एंड मेनी ऑफ यू मस्ट बी गिविंग द प्रीलिम्स and already have given the prelims, and
do enroll yourself so that you can come up with best of the questions and best of the model answers and go past around 280 or score 300 in your mains. So now coming on to Henry Fayol, administrative management theory, administrative theory. So French engineer थे, earliest writer थे journal theory of management पे, और engineer थे साथ में. he rose to the ranks of management and then from engineering to management his idea about how does management works, how the organization works changed a lot and believed in single administrative science. इनका ये मानना था कि एक ही administrative science है और वो जब science है तो science is always same. If you do a chemistry का experiment that would be same चाहे वो आप एक रूम में करें या दूसरे रूम में, if the conditions of temperature and pressure are same. ऐसा ही इनका मानना था कि administrative science है और administrative science को आप प्राइवेट में लगाइए या पब्लिक में लगाइए या फिर आप यूनिवर्सिटी में लगाइए या हॉस्पिटल में लगाइए, इट इज ऑल सेम. सो हिज आइडिया वाज कि हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं और क्योंकि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फंडामेंटल लॉज होते हैं और अगर उनको आप कहीं भी लगाएंगे वी विल फाइंड अ वन बेस्ट वे, वी विल फाइंड the proper way to go and apply those principles everywhere. So he published in 1960s 16 published a paper, General and Industrial Management. इस पेपर का मतलब है एक तरीके से रिसर्च पेपर जिसका जो बेस था वो बेस था इंडस्ट्रियल यूनिट जहां पर ये काम करते थे. तो ये इन्होंने छापा और इनका ये मानना था कि दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी क्लासिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स टू द डेट. इनका ये मानना था कि नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन rather is needed at higher level of an organization. तो इनका ये मानना था कि टेक्निकल नॉलेज की जगह what we need, not technical knowledge, not too much of technical knowledge you do not need. Technical knowledge is needed when you are working at the shop floor level or middle or lower management. But when you rise into the management hierarchy, जब आप यहाँ पर आ जाते हैं, what you needed is knowledge of administration rather is needed at higher level of organization rather than technical knowledge. ये इनका मानना था. So primary function of administration है क्या? So Henry Fayol is saying POC एक इनका acronym है, POCCC, ये आप याद रखिएगा. So planning, organizing, commanding, coordinating, controlling. So primary function of administration. मैनेजमेंट फंक्शंस भी यही हैं. So क्या है प्राइमरी फंक्शन? प्लानिंग करना, आगे की तैयारी करना. फॉर एन एग्जाम्पल, लेट अस सपोज यू आर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट or you are in a private company, a CEO. So you are in administration, you are overseeing the management. So obviously you have to plan. You have to plan if there is disaster management aspect you are doing as a DM. So you have to plan how you will going to respond. Then organize men and material. So what have you doing in organizing? Organizing का मतलब है you have many things. Imagine you have 10 trucks of supplies, but you have to organize them. Organize कौन से गांव में, कौन से ब्लॉक पे, कौन सी तहसील में क्या सामान जाएगा, ताकि गांव में अगर फ्लड आई हुई है तो उन लोगों को हेल्प करा जा सकते. बहुत सारा सामान है, बट यू हैव टू ऑर्गेनाइज. ये मेडिकल नीड्स के लिए है और ये बच्चों के लिए है, ये फूड सप्लाईज है, ऐसा. कमांड और टेल टू द सबऑर्डिनेट व्हाट शुड बी डन. सो कमांडिंग इज दैट यू आर गिविंग ऑर्डर्स टू द सबऑर्डिनेट्स, अपने से नीचे वाले को. हायरार्की में इफ डीएम इज हियर, सो एसडीएम और तहसीलदार इज हियर, सो you have to give orders to them. Command, coordinate. Now district magistrate has to coordinate with SDM1 and SDM2 and SDM3 or block development officers, BDOs, right? So this is, you see, this is the function of administration. Then control also. So you have to control whatever these people are doing. If somebody is doing something जो कि bad quality का है, या किसी के खिलाफ आपको मिल रही है शिकायत, that the work is not proper, so then at that time you have to control this and controlling. So these are the primary function of administration. I have told you in context of Indian bureaucracy. This can be again understood in terms of
manufacturing unit as Henry Fayol was working into. Fayol's principle of management इन्होंने, अब Fayol ने ये तो कहा कि प्राइमरी फंक्शंस तो ये हो गए, मैनेजमेंट के फंक्शंस तो 5 हैं, इंपॉर्टेंट ये करना होता है पॉक। साथ में इन्होंने एक और चीज कही, इन्होंने कहा कि मैं 14 फंडामेंटल लॉज भी दे रहा हूं, फंडामेंटल बिल्कुल बेसिक एस्पेक्ट दे रहा हूं, प्रिंसिपल्स दे रहा हूं, और ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, ये भी प्रिंसिपल हैं फंडामेंटली, और भी कुछ चीजें हैं, 14 हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन पे बेस्ड। सो अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे, स्पेशलाइज्ड वर्क कर देंगे, क्योंकि हर कोई हर काम नहीं कर सकता, सो आपको टोटल जो काम है, इफ दिस इज द टोटल वर्क, देन डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट, डिवाइडेड इनटू पीपल, जैसे हमारी ब्यूरोक्रेसी में भी होता है। इफ दिस इज द होल ऑफ द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, तो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू तहसील, और बाय फंक्शन भी डिवाइड कर सकते हैं, पुलिसिंग और डेवलपमेंटल फंक्शन जैसे सीडीओ बीडीओ होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन। सो यू नीड टू डू अ डिवीजन ऑफ वर्क। ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है, और ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को टर्मिनस होनी चाहिए। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उतनी ही ऑथोरिटी भी होनी चाहिए उसके साथ, राइट। आइडियल मैनेजर, ऑफिशियल ऑथोरिटी अराइजिंग फ्रॉम ऑफिशियल पर्सन पोजिशन, और साथ में उसकी इनहेरिट पर्सनल ऑथोरिटी भी होती है। तो एक तो फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं इंडियन कंटेक्स्ट में आपको समझाना चाहूं इस चीज को, सो कोई भी आइडियल ऑफिसर भी है अगर, सो एक तो ऑथोरिटी हो रही है उसकी अराइज की वो यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस ऑफिसर या आईएएस बना है, एक चीज को ऐसे समझ लीजिए। साथ में उसकी पर्सनल इनहेरिटेंस भी है कि वो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, इंटेलिजेंट है, साथ में हिज मॉरल कंपास इज वेरी स्ट्रॉन्ग, साथ में फिजिकली ऑल्सो ही लुक्स गुड एंड कमांडिंग पर्सनैलिटी है ही और शी, और उसका असर पड़ता है। दैट इज वाई सो आइडियल मैनेजर, जो आइडियल ऑफिसर है इंडियन कंटेक्स्ट में, या आइडियल मैनेजर है अकॉर्डिंग टू फेयोल, वहां ऑफिशियल पोजीशन है कि उसको ऑफिशियली आईपीएस अधिकारी आईएएस अधिकारी बनाया गया है, या उसकी इनहेरिटेड भी है, इंटेलिजेंस है, मॉरल गुड है, गुड लुकिंग है, कमांडिंग पर्सनैलिटी है, फिट है, ये सब एस्पेक्ट भी डिपेंड करते हैं। सो पर्सनल ऑथोरिटी इज कंपाउंडेड ऑफ इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, मॉरल वर्थ, एबिलिटी टू लीड, पास्ट सर्विस, एक्सपीरियंस कहता है, ये सब चीजें उन्होंने कहा कि ये जरूरी है। नाउ अनदर सम मोर प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड है आपके इंडिविजुअल के टर्म में, इंडिविजुअल के टर्म में, और ये है आपके ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखिए, लेट अस सपोज यू आर पोस्टेड एज डिविजनल कमिश्नर। डिविजनल कमिश्नर डीसी बोलते हैं, डीएम से ऊंचा पद है, और डिविजनल कमिश्नर के अंदर 4, 5 या 6 भी डीएम हो सकते हैं, डीएम 1, डीएम 2, डीएम 3 और डीएम 4, राइट। दिखाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। फॉर एन एग्जाम्पल, आई वॉज पोस्टेड while I was working, I was posted in मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट। सो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिविजनल कमिश्नर बैठते थे। अगर आपने रिसेंट टाइम्स में एक पर्टिकुलर मुद्दा सुना हो जहां पर रामपुर में चुनाव में श्री आजम खान जी का जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो गया था। सो एट दिस गाय, जो कि उस समय रिटर्निंग ऑफिसर थे, देन ही बिकेम प्रेजेंटली डिविजनल कमिश्नर ऑफ मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट। आप जाके जरूर देखिएगा, कंट्रोवर्सी भी देख लीजिएगा। सो उनको आजम खान जी ने कुछ ऐसे अपशब्द कहे थे जिसकी वजह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जाके उनका वो कैंसिलेशन हो गया कैंडिडेचर। सो डिविजनल कमिश्नर इज देयर एंड डीएम्स आर देयर। नाउ divisional commissioner would give direction, would give command to DM, and DM would give command to SDM, and in between ADM, and they will give command to all other tehsildar and others, right? Try to understand. Let us suppose now this is happening that to tehsildar DM is also giving command, ADM is also giving command, and SDM is also giving command, and they are saying do X and Y and Z thing. What will happen? That will impact the total outcome. That is not very congenial. That would be bad, right? So this is one of the major problems that
may arise when it comes to the मल्टीप्लिसिटी इन यूनिटी ऑफ कमांड। अब ऐसे ही है, ये इंडिविजुअल के एस्पेक्ट में है, ऐसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए कि पूरी की पूरी जो आपकी बॉडी है, जो आपकी कॉर्पोरेट बॉडी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरफ जानी है। सो उसके सारे जो सब पार्ट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो एक साथ एक तरफ जाने चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इसका मतलब है कि ऑलवेज एंड ऑलवेज वन पर्सन इंडिविजुअल वो क्या कहेगा, पूरे की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के नीचे रहेगा। सो ये इंडिविजुअल वुड नॉट सेल्फ एग्रेंडाइज, वुड नॉट इम्पोज हिज और हर फीलिंग, रादर हमें क्या करना है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेके चलना है। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, रेम्यूनरेशन इज सैलरी और वॉट एवर बेनिफिट यू आर गेटिंग, so that is very important to motivate people. Centralization, so whenever, for an example, let us suppose this is 3 layer of central government, state government and decentralization के through पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी, राइट। सो सेंट्रलाइजेशन, दिस इज द इंडियन गवर्नमेंट का कंटेक्स्ट, और ये आपका किसी कंपनी के कंटेक्स्ट में भी हो सकता है सेंट्रलाइजेशन। तो जहां जहां सेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा वहां वहां क्या होगा, जो डिस्क्रिशन है, पावर्स हैं जो लोअर लेवल ऑफ वर्कर्स की, वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी। जहां जहां डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा वहां वहां, जैसे आप देख रहे हैं 73rd 74th अमेंडमेंट के थ्रू क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ गया, पंचायतों का अधिकार बड़ा हो गया। सो दैट हैज टू बी सीन इन कंटेक्स्ट ऑफ नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नीड ऑफ द डिपार्टमेंट और नीड ऑफ द मिनिस्ट्री, नीड ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। स्केलर चेन है, स्केलर चेन का मतलब है कि एक चेन है, वहां से क्या हो रहा है, आपको कमांड आ रही है और एक स्केलर की तरह है, ऊपर से नीचे आ रही है, और उसमें यही स्ट्रक्चर रहना चाहिए। हायरार्की, इसका दूसरा रूप है हायरार्की, इसको दूसरा कहा जा सकता है। सो देयर इज डीएमएस, डीएम एंड सो ऑन। सो ये हो गई स्केलर चेन। बट हेनरी फ्योल ने ये भी कहा कि स्केलर चेन में कोई भी बात अगर यहां से, इसको लेवल 1 मान ले, इसको 2 मान ले, इसको 3 मान ले, इसको 4 मान ले, इसको 5 मान ले, अगर यहां से कोई भी बात आ रही है तो इट में टेक लॉट ऑफ टाइम एंड दिस में रिजल्ट इनटू लेट वर्क, जिसको हम बोलते हैं रेड टेपिज्म भी बोलते हैं, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, रेड टेपिज्म, राइट, रेड टेपिज्म यूज करते हैं। तो वो ना हो, इसके लिए एक उन्होंने गैंग प्लान दिया। उनका ये कहना था कि लेट अस सपोज दैट यू हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन टू डी टू जी, राइट। सो रादर देन गोइंग होल ऑफ दिस स्केलर chain, why not link these two things horizontally, right? So that was his idea of gang plan. Then there should be order, there should be social order, and there should be also order in supply chains, in backward and forward integration, in money and in material, in men, and social order also within the organization. Then there should be equity. Equity is based on justice. There should be, no one should be ट्रीटेड बैडली इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऐसा बैडली ट्रीट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगी। इट इज बेस्ड ऑन ट्रीटिंग इक्वालिटी एंड ट्रीटिंग विद जस्टिफाइबल वे, जस्टिस होना चाहिए सबके साथ। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की बात करी गई है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर इज अबाउट गिविंग टाइम टू पीपल सो दैट दे कैन सेटल। अब जैसे किसी का भी ट्रांसफर, आपने अशोक खेमका जैसे अधिकारी जी का नाम सुना होगा, सो हर 3 महीने में 2 महीने में ट्रांसफर हो जाता है। या हमारे देश में ये समस्या है जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन और रिफॉर्म्स कमीशन, पुलिस कमीशन, इवन जो आपकी मनीबात कमीशन या फिर जूलियो रिबेरो कमीशन और भी ने कहा है कि एटलीस्ट 2 साल का समय होना चाहिए जो भी एग्जीक्यूटिव है, ऑफिसर है, उसको समझने के लिए चीजों को। सो हर 6 महीने में 5 महीने में ट्रांसफर हो जाता है, तो दैट इज बैड। दैट इज यहां पर आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर वाला एस्पेक्ट जो इंडियन कंटेक्स्ट में है। और ऑब्वियसली जब हेनरी फ्योल लिख रहे थे वो इंडियन कंटेक्स्ट को नहीं देख नहीं रहे थे, पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब हम पढ़ रहे हैं बुक को, इंडियन कंटेक्स्ट में लगातार उसको सिंक्रोनाइज करना बहुत जरूरी है, राइट। सो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एआरसी ने भी कहा है और भी रिफॉर्म कमिटीज ने कहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए, सो दैट पर्सन कैन बी फ्री ऑफ स्ट्रेस एंड कैन फोकस ऑन माइंड।
इसी के साथ हम बात करें, इनिशिएटिव लेने का अधिकार देना चाहिए एंड शुड बी प्रमोटेड. सो यू सी ओवर हियर ऑन दिस सिविल सर्विसेज डे ओनली, मिस्टर मोदी urges bureaucrats to be agent of change and innovation. He said the people, the bureaucrats should take initiative, good initiative, right? So I have made another video, Anil Kumar Lakhina ji ka Lakhina model in Maharashtra, how he took initiative and brought a reform. So ये बात है, ये फेओल भी कह रहे हैं इंडियन कंटेक्स्ट में, यहाँ पर है स्पिरिट डी कॉर्प्स. अब सब इसको हम मान सकते हैं कि ब्रदरलीनेस एट द स्पेस ऑफ वर्क, सबको वन यूनिट बन के काम करना है और एक दूसरे को बढ़ाते रहना है. सो देयर शुड बी नो पॉलिटिक्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, देयर शुड बी नो pulling down of one another, rather whole of the organization from the top to bottom should function in a same way and everybody should be treated in a way and the माहौल जहां पर आप देख रहे हैं बेहतर होना चाहिए. So this was Henry Fayol's ideas. और आइडियाज जो हैं इन्होंने बुक में दिए हैं और स्कॉलर्स ने, उन्होंने कुछ क्रिटिसिज्म एस्पेक्ट में, साइनिकल एस्पेक्ट में, एक तरीके से अटैक करते हुए, जिसे हम आज के टर्म में कह सकते हैं ट्रोलिंग करते हुए कुछ लिखा है. सो देखते हैं. पार्किंसन इन हिज बुक पार्किंसंस लॉ, सी नॉर्थकॉट पार्किंसन है ये, इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर्स क्रिएट वर्क फॉर ईच अदर बाय आर्टिफिशियल मीन एंड स्वेल देयर रैंक. स्वेल देयर रैंक का मतलब क्या है कि 4 ऑफिसर हैं तो उसको ये सोचेंगे अरे 3 ऑफिसर और मंगा लीजिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट में केवल 4 एसडीएम है, अगर 3 और एसडीएम हो जाएं तो ये 7 एसडीएम हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया काम होगा. तो हमेशा ऐसा लिखते रहेंगे अधिकारी और वो अपने लिए नए नए काम बनाते रहेंगे, नए डिपार्टमेंट लेके आएंगे ताकि उनको लगातार काम मिलता रहे. द मोर वर्क दे गेट द मोर बेनिफिट, द मोर करप्शन दे कैन डू. ये भी एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है, ठीक है. मैनेजर मैनिपुलेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को. ऑर्गेनाइजेशन को मैनिपुलेट का मतलब क्या है? रॉन्ग गोल सेट करना, रॉन्ग इनपुट्स देना, पर्सनल बेनिफिट्स लेना उसमें. सो ऑब्वियसली करप्शन के एंड पे भी आप देख सकते हो इंडिया में करप्शन कितना ज्यादा है, ब्यूरोक्रेसी भी करप्शन में इन्वॉल्व है. अगर आपको पता ही होगा रिसेंट टाइम्स में आपने देखा है टॉपर्स, यूपीएससी के टॉपर्स जैसे झारखंड में मिस सिंगल, ठीक, शी was one of the toppers and उनके घर से ही 19 करोड़ रुपए कैश मिला था. and many other bureaucrats are those. So you can see in that context structure to maximize their personal prestige. So यहाँ पर वो जो भी रिसोर्सेज यूज करते हैं ब्यूरोक्रेसी में या कंपनीज के अंदर, मैनेजर क्या कहते हैं अपने पर्सनल प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए करते हैं, एम्पायर बिल्डिंग करते हैं. एम्पायर बिल्डिंग का मतलब है सबको, अपने को सबसे अच्छी गाड़ी दे देना, अपने को सबसे अच्छा घर ले लेना, ज्यादा से ज्यादा एक काम करके दिखाना, राइट. ये करके दिखाना बट नॉट करना, राइट. ये क्या है? ये कुछ क्रिटिसिज्म है जो कि बहुत एप्टली अगर आप इंडियन ब्यूरोक्रेसी में लगाओगे तो भी देखने को मिलता है. Executive increase their subordinates, so everybody wants to have large number of subordinate behind them down the lane so that they can show to the world that how much power they have, right. ऑर्गेनाइजेशन ग्रो मोर स्टूपिड. अब जब ऐसा होने लगता है, ये सब आपने चीजें देखी, आप इसको इंडियन कंटेक्स्ट में लगा के देखिए. जैसे जैसे ऐसा होने लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा एम्पायर बिल्डिंग टेंडेंसीज आ जाएंगी लोगों में, ज्यादा से ज्यादा आपको ये देखने को मिलेगा कि ऑफिसेस खुलने लग गए हैं, तो वहां पर स्टूपिड बनने लगती हैं ऑर्गेनाइजेशन, अपना जो रियल पर्पस है वो भूलने लगती हैं. कमीशन फॉर्म होने लगती है, मल्टी मेंबर बॉडी, हर चीज के लिए कमिटी. कहां पर है साहब? मीटिंग में है. जब भी ये शुरू हो जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इसका मतलब उसका डाउनफॉल आने लग गया है. काम कम होता है और खाली दिखावा ज्यादा होता है. ग्रैंडियर ऑफ बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनना, नए पंचायत भवन बनना, नए अधिकारियों के मकान बनना, ये शुरू हो जाता है. और फैसिलिटी रीचेज इट्स क्लाइमैक्स, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट डिकेइंग. जब भी ऐसा होने लग जाए, ब्यूरोक्रेसी अपने आप में बहुत ज्यादा है, अपने को सुविधाएं देने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, नए नए सिस्टम्स लगाने लग जाए, उस पर ज्यादा ध्यान हो, तो समझ लीजिए डिके होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन का. अब इसे अगर ब्रिटिश कंटेक्स्ट में देखें, हम कहते हैं यार क्या बढ़िया बिल्डिंग बनाई है ब्रिटिश ने. आप अगर जाएंगे, सो जो कहीं भी किसी भी मंत्रालय में जाए या फिर आप बंगाल में जाएंगे, जो वहाँ का अब है नबन्ना जिसे बोलते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर्स है, वो अंग्रेजों की बनाई हुई बिल्डिंग है. कितनी ग्रैंडियर है, बट दैट इज द
negative aspect. The more the buildings, the more the structure, the more the bureaucrats are serving themselves, the decaying start. अब इसका ये मतलब नहीं है कि we should not do, but again इन tendencies को check करके रखना चाहिए. Expenditure eat up the available money, ये है. So अगर यहाँ पर चीजें ज्यादा खर्च होंगी तो मनी गलत जगह चली जाती है. तो ये है आपका नॉर्थकॉट जी ने कहा. ये आपके साथ में वन मोर पर्सन, पीटर प्रिंसिपल. सो लॉरेंस पीटर्स ने एक और बात कही. उन्होंने साइनिकल, एक कटाक्ष करते हुए कहा ऑफ एरर्स इन सेलेक्टिंग मैनेजरियल कैंडिडेट. तो उन्होंने कहा कि पहले तो सिलेक्शन ही गलत होता है लोगों का, और दूसरा लॉरेंस ने कहा कि लॉरेंस पीटर्स और रेमंड हॉल ने कहा कि मैनेजर्स टेंड टू प्रमोटेड अंटिल दे रीच द लेवल ऑफ देयर इनकॉम्पिटेंस. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हायरार्की में एक बार कोई प्रमोट हो गया, फिर समय समय पर उसका प्रमोशन होता रहता है, और वी डू नॉट नो वेदर इस टाइम में, लेट अस सपोज अगर मैं बात करूं यहां से, और एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं, somebody was inspector and have been promoted to DSP. तो समय समय के बाद इनका फिर SSP, SP बन जाएंगे, SSP बन जाएंगे, होता रहेगा प्रमोशन. So we do not know whether they have added, whether they have plus their capability also. कैपेसिटी बिल्डिंग भी हुई है या नहीं हुई है इनकी, वी डू नॉट नो. सो मैनेजर टेंड टू प्रमोट अंटिल दे रीच द लेवल ऑफ देयर इनकॉम्पिटेंस. फिर ये ऊपर तो चले जाते हैं, बट दे बिकम वेरी इनकॉम्पिटेंट. दे आर नॉट एबल टू सेव द जनता की प्रॉब्लम. सो दैट इज व्हाट पीटर प्रिंसिपल इज. So it focuses on wrong selection, wrong promotion methods. So administrative management theory जो थी टेलर के द्वारा, हेनरी फेयोल के द्वारा, फाउंडेड ऑन 14 प्रिंसिपल ऑफ फेयोल कंसर्न्ड विद मैनेजमेंट एस्पेक्ट एंड द टास्क ऑफ मैनेजर. मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, टास्क ऑफ मैनेजर क्या होना चाहिए, इस पे बेस्ड है. और एज कंपेयर टू जो इससे पहले चैप्टर में हमने टेलर की थ्योरी पढ़ी है, वो शॉप फ्लोर लेवल जहां पर काम हो रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड है. और फेयोल इज मैनेजमेंट, राइट. साथ में अगर हम देखें कि कुछ लोग फेयोल के फॉलोअर्स भी थे 1920s और 30s में, फॉलोअर्स जो आए फेयोल के, उन्होंने इस मूवमेंट को आगे भी बढ़ाया. सो लूथर गुलिक एंड लिंडन उर्विक हैड अ वाइड एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री और गवर्नमेंट. ये दोनों ही मिलिट्री में भी इनका योगदान रह चुका था. ये दोनों यहां पर लिंडन उर्विक और लूथर गुलिक आपको देखने को मिल रहे हैं. दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ मिलिट्री, दे हैड एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. पर्टिकुलरली इन म्युनिसिपैलिटी वर्क दे डिड लॉट ऑफ थिंग्स. सो हैड वाइड एक्सपीरियंस, कई जगह से इनका एक्सपीरियंस था. म्युनिसिपल रिफॉर्म्स मूवमेंट भी जो चल रहा था अमेरिका में उस समय 1930s में, बिकॉज ओवर देयर जो अर्बन गवर्नेंस थी बहुत खराब थी. जैसे आज हमारे यहाँ क्या चल रहा है, स्मार्ट सिटी चल रहा है, राइट. ऐसा ही अमेरिका में भी 1930s के अमेरिका को ऐसा ही मान लो. सो रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज जो लाने थे, उनके लिए इन्होंने कहा कि देयर आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस्ड होने चाहिए. साथ में ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो ये भी अपने प्रिंसिपल्स कुछ डिस्कवर कर रहे थे. जैसे 1937 में लूथर गुलिक और लिंडन उर्विक ने एडिट किए पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सो साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को ये प्रोपोगेट कर रहे थे, और इन्होंने कहा कि देयर इज साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर आर सम ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट वी हैव डिस्कवर्ड, एंड इफ यू विल अप्लाई दोज प्रिंसिपल एनीवेयर दे वुड फेच यू बेटर रिजल्ट्स. और ये जो पेपर्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये ध्यान रखिएगा. 1937 में आया. ये प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को जो एक सजेशन के लिए कमेटी बनी थी, उसको सबमिट करने वाले जो डॉक्यूमेंट थे वो थे. और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने क्यों इनको लोगों को लिया था, लूथर गुलिक और लिंडन उर्विक को, ताकि दे कैन सजेस्ट वेज टू इंप्रूव द म्युनिसिपल गवर्नमेंट एंड अदर गवर्नमेंट फंक्शन इन द यूएसए. डू रिमेंबर. सो असर्शन ऑफ पॉजिटिविज्म एंड यूनिवर्सलिज्म. सो पॉजिटिविज्म एंड यूनिवर्सलिज्म का मतलब ये है इंपेरिकल मेथड पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था. इंपेरिकल मेथड, डेटा कलेक्शन, सजेशन बाय दैट, और साथ में यूनिवर्सलिज्म की वेदर यू यूज आवर प्रिंसिपल्स जो ये डिस्कवर कर रहे हैं साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाले, इन प्राइवेट, इन पब्लिक, इन हॉस्पिटल, इन लाइब्रेरी, इन ऑर्फनेज और इन अ मॉल, एवरीवेयर दे विल वर्क. सो दे सजेस्टेड सम another acronym, and that was POSTCOR: planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting. So you see, planning is the first function of the management, and organizing का भी मैंने आपको फेयोल के सेंस में बता दिया. स्टाफिंग का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन, लोगों को रिक्रूट करना,
ठीक है, लोगों को ट्रेनिंग देना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना। जैसे हमारे देश में भी अभी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या हो रहा है, जैसे हमारे देश में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कर्मयोगी, ठीक है, और आई गॉट पोर्टल, ये आपको पता ही होगा, ये चल रहा है। ठीक है, डायरेक्शन देना, कोऑर्डिनेशन कराना, रिपोर्टिंग करना और बजटिंग करना, फीडबैक भी लेना और बजट भी एलोकेट करना, ये सब काम है। पोस्ट कॉर भी याद रखिएगा, लूथर गुलिक, लिंडन उर्विक। सो और इनकी जनरल अप्रोच क्या थी, गुलिक, राइट, उर्विक, देयर मस्ट बी अ क्लोज मैच बिटवीन पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर इस लेवल पे ज्यादा काम है तो यहां पर ज्यादा एलोकेशन ऑफ पीपल हो। अगर कोई टेक्निकल वर्क है तो वहां पर टेक्निकल नेचर का सिलेक्शन होना चाहिए। ये है यूनिटी ऑफ कमांड इज एसेंशियल टू ऑर्गेनाइजेशन। अगर कमांड जैसे कई जगह से एक ही व्यक्ति को कमांड आ रही है, इमेजिन दिस इज एसडीएम एंड कमांड इज कमिंग फ्रॉम सेक्रेटरी, फ्रॉम डीएम एंड फ्रॉम द डिविजनल कमिश्नर, देन देयर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और डिपार्टमेंटलाइजेशन जो होने चाहिए वो किसके आधार पे होने चाहिए, पर्पस के आधार पे, प्रोसेस के आधार पे, पर्सन के आधार पे और प्लेस के आधार पे। जैसे हमारे यहाँ हो सकता है डिपार्टमेंट हो सकता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट हो सकता है, फिर पर्सन्स के लिए हो सकता है ट्राइबल के लिए हमारे यहाँ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ही है, और पर्पस के लिए हो सकता है आपका टू ब्रिंग चेंज, टू एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, या फिर ये जैसे आपका है एक मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस में एक डिपार्टमेंट है दीपम, डिपार्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट के लिए, DIPAM। सो क्या पब्लिक असेट मैनेजमेंट के लिए है, पर्पस हो गया। प्रोसेसेस के थ्रू हो सकता है, क्या ई गवर्नेंस के थ्रू करना है, ICT का यूज करना है या न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करना है, ऐसे हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी कमेंसुरेट विद ऑथोरिटी। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है वो क्या होती है, को टर्मिनस होती है, को रिलेटेड, उतनी ही ऑथोरिटी भी दो। और डेलीगेशन को केयरफुली प्लान करो, हर चीज को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। सो डेलीगेशन ये देखना है कि नीचे वाला व्यक्ति जिसको डेलीगेट किया जा रहा है, काम करने को दिया जा रहा है, उसको अधिकार भी दिए जा रहे हैं, इज केपेबल इनफ, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वुड ही और शी वुड बी एबल टू डू अ फंक्शन। स्पैन ऑफ कंट्रोल शुड बी राइटली कंस्ट्रक्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है स्पैन ऑफ कंट्रोल का, सिंपल सी बात है, जैसे ये 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4 और 5। सो एक ऑफिसर जो है या एक एग्जीक्यूटिव जो है अपने नीचे कितने लोगों को सही से ओवरसी कर सकता है, सुपरविजन कर सकता है, इसी को स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। सो ये केयरफुली करना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग लगा दिए हैं एक ही लेवल के नीचे, सो ऑब्वियसली दिस पर्सन वुड नॉट बी एबल टू फुलफिल हिज ड्यूटी प्रॉपर्ली। सोर्स ऑफ अथॉरिटी शुड बी क्लियरली कंसेंट्रेटेड इन वन टॉप एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब है कि अथॉरिटी जो पास हो रही है वो सोर्स यहां पर होना चाहिए, ये लीडर होना चाहिए और साथ में सब नीचे इसके काम होने चाहिए। सो अगेन in addition to what Luther Gulick and Lyndon Urwick said, there were some other people also, James D. Mooney and Alan C. Raleigh. So these people were working in corporate in America, in General Motors, and those were the executive in them, right? वहां मैनेजर्स थे। इन्होंने भी अपना कुछ सजेशन दिया। इन्होंने कहा प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि यूनिटी ऑफ एक्शन हो जाए। अब इमेजिन करिए ये जनरल मोटर्स में काम कर रहे हैं, तो जनरल मोटर अगर कोई कंपनी है जो कि कार बनाती है तो उसमें एक जगह मार्केटिंग का भी फंक्शन होगा, एक जगह मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फंक्शन हो रहा होगा, एक जगह सप्लाई चेन का फंक्शन होगा, और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट या आपके सेक्शंस हो सकते हैं। तो इनका यही कहना था प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये आपस में कोऑर्डिनेट करें क्योंकि एक काम करना है और वो है कि इनकी अपनी कंपनी जो थी उसको आगे ले जाना है। वी कैन यूज दिस मेटाफॉर ऑल्सो फॉर ब्यूरोक्रेसी। यहां पर जैसे मैंने एसडीएम करके बताया, या और भी कोई सर्विस के लिए। स्केलर प्रिंसिपल हायरार्की को एम्फेसाइज करता है। स्केलर प्रिंसिपल का मतलब है ऊपर से नीचे कमांड आ रही है, एक दिशा में जा रही है। फंक्शंस प्रिंसिपल, द फंक्शनल प्रिंसिपल टू बी फॉलोड है कि टास्क को डिपार्टमेंट में बदल दो, मतलब स्पेशलाइज यूनिट में बदल दो। जैसे हमारे भी देश में डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जैसे आपका है जो डिवीजन है आपकी बनाती है बजट, राइट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और डिपार्टमेंट ऑफ फॉर डिसइन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कई सारे डिपार्टमेंट हैं, राइट। सो उनको फंक्शंस को डिपार्टमेंट के अनुसार डिवाइड कर दो।
स्टाफ और लाइन फंक्शंस भी इनका एक मेन रोल था। स्टाफ एंड लाइन। स्टाफ का मतलब है जो ऐसी बॉडी जो प्लानिंग कर सके, जो प्लान्ड हो। पब्लिक पॉलिसी में भी बड़ा योगदान है, राइट, प्लानिंग का। सो प्लानिंग, एडवाइस देने के लिए। और लाइन है एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी। ये जो वर्ड आए हैं स्टाफ और लाइन, ये बेसिकली आए हैं जो वॉर के समय जो आपकी डिफेंस लाइन होती है या अटैक लाइन होती है, आगे जो लड़ रहे होते हैं और उनको जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, सप्लाईज वाले, सिग्नल्स वाले, वो उनको स्टाफ फंक्शन बोला गया है। सो उस वहां से ये आइडिया लेके इन्होंने इसको ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर स्टाफ फंक्शन और लाइन फंक्शंस को यूज किया। सो ध्यान रखिएगा, स्टाफ इज मोर अबाउट प्लानिंग, लाइन इज मोर अबाउट एग्जीक्यूटिंग। आगे हम बात करते हैं मैरी पार्कर फॉलेट की। सो मैरी पार्कर फॉलेट हैज बीन कंसिडर्ड टू बी a leader who was ahead of her time. She was one of the greatest female leader and one of the female leader of her times in terms of thinkers that we study. She has been called as prophet of management by Peter Drucker and his guru, and many of the thinkers in behavioral times have used Mary Parker Follett's work as their base work and took in lot of inspiration, be it Chester I. Bernard, be it Elton Mayo. So she contributed significantly to level of development of management thought, but she was very different from other people of her times because she died in 1933. Her work published in 1930s, late and 40s. Do remember this. Even Luther Gulick Lindenurweg did some editing in her work and published. तो ये ध्यान रखना है, she was also writing in 1920s, पर इनके अलावा जो 1920s में राइट कर रहे थे, they were all focusing on efficiency, effectiveness and structure, hierarchy, authority. But her idea when she was writing was ahead of time. Why? Because she was link between behavioral school, ह्यूमन रिलेशन एंड बिहेवियरल स्कूल, जो कि सोशियो और साइकोलॉजी एस्पेक्ट को देख रहे थे, और यहां पर जो साइंटिफिक प्रिंसिपल वाला एरा था, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, या फिर हमने जो बात करी आपको मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, ये इसके बीच की क्या थी, कड़ी थी। यहां पर मैरी पार्कर फॉलेट थी, ये याद रखिएगा। सो ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कहा कि एक सोशल सिस्टम है, मतलब लगातार लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है, और इसी तरह मैनेजमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम है, इनपुट आउटपुट आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, और मैनेजमेंट क्या है, एक सोशल प्रोसेस है, एक 1 2 3 4 स्टेप्स हैं उसमें, वो करना होता है। Focused on psychological and sociological aspect of management at the time when everybody else was thinking about effectiveness, efficiency, economic man. जब हर कोई इकोनॉमिक मैन के एस्पेक्ट में सोच रहा था, इनके कंटेम्प्रेरी लोग, चाहे वो लूथर गुलिक लिंडेन-उर्विक हो, चाहे हेनरी फेयोल हो या F.W. टेलर हो, she was thinking ahead of time. She was thinking about psychological and sociological aspect of management. Unlike other writers, her time Follett gave significance attention to lateral coordination. देखिए यहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि हर जगह वर्टिकल ऑर्डर्स आ रहे हैं, पर इन्होंने कहा नहीं, अगर ये इमेजिन करिए, फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, दिस इज SDM, this is SDM, and this is SDM. So she said that not only district magistrates should give orders to SDM, but rather SDMs should also interact with one another. या फिर इसको प्राइवेट सेक्टर में मान लीजिए, she focused her work on industrial groups. All other were focusing on not on industrial groups, rather policy and state, इनसे पहले के politics. So she put her forward her way of looking view on industrial groups. So lateral coordination होना चाहिए, जैसे यहां पर देखने को मिल रहा है, ये lateral coordination है, एक ही लेवल पे इधर उधर, और authority acceptance in organization. So इन्होंने कहा कि authority को भी इन्होंने different aspect में explain किया। इन्होंने ये भी कहा कि authority lies with the job, उसके जॉब के कंटेंट में होती है, पर्सन में नहीं होनी चाहिए, पोजीशन में नहीं होनी चाहिए, पर कौन जॉब उसको कर सकता है बेहतर व्यक्ति, उसमें होनी चाहिए।
इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रेट करने की बात करी। ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल बहुत ही अलग अलग फील करते थे। अलग अलग फील करने का मतलब है देयर इज सेंस ऑफ डिटैचमेंट, देयर वाज सेंस ऑफ इम्पर्सनलाइजेशन। ये ध्यान रखिएगा वर्ड जो आई एम यूजिंग, देयर वाज सेंस ऑफ इम्पर्सनलाइजेशन। सो देयर वाज नो लिंकेज, नो इमोशनल कनेक्ट। तो उन्होंने कहा इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बेहतर तरीके से मिले। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आना चाहिए और उसके लिए उन्होंने कहा कि न्यू टाइप ऑफ थिंकिंग चाहिए। क्रिएटिव एक्सपीरियंसेस की बात करी, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की बात करी कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बुराई नहीं होती है, उसको पॉजिटिवली देख सकते हैं हम कॉन्फ्लिक्ट को। इन्होंने मेटाफर यूज किया कि जैसे दुनिया में हर चीज फ्रिक्शन से चमकती है, सोने को आप ऐसे ऐसे कर दीजिए तो चमकदार हो जाएगा, राइट। सो ऐसे ही फ्रिक्शन अगर होगी तो वो बुरी बात नहीं है। हार्बिंजर ऑफ बिहेवियरल साइंस अप्रोच टू द ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। तो जैसे मैंने कहा कि शी वाज अ ब्रिज इन बिटवीन द साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्लासिकल मूवमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी एंड द सोशल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी विच वाज बिहेवियरल एस्पेक्ट, विच वाज ह्यूमन रिलेशन एस्पेक्ट। उसके बीच की कड़ी थी, तो अपने समय में ये आगे का सोच रही थी। So she has innovative ideas. Social conflict को इन्होंने कहा कि it is positive rather than negative. Cooperation होना चाहिए. Cooperation should be the principle which would run across the organization. Group process की बात करी, individual अपना ट्रू एक्सप्रेशन तभी ले पाते हैं ग्रुप रिलेशनशिप में। सो इंडिविजुअल्स को अलग अलग देखना सही नहीं है, विद इन द ग्रुप्स उनको कैसे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं पूरे में देखना चाहिए। उन्होंने कहा कम्युनिकेशन शुड फॉलो हॉरिजॉन्टली। सो अभी तक केवल स्केलर प्रोसेस की बात हो रही थी, हायरार्की की बात हो रही थी, जहां पर ऐसे ही था। तो इन्होंने क्या कहा, जो अभी हमने वर्ड यूज करा था यहां पर लेटरल कोऑर्डिनेशन, और ऐसे ही जो वर्ड है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होना चाहिए। सो नॉट ओनली हायरार्किकल टर्म। कंट्रोल प्लूरलिस्टिक होना चाहिए, क्यूमुलेटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है सो उसमें मल्टीपल जगह कंट्रोल हो सकता है। जैसे ये है, यहां पर कंट्रोल, इस लेवल का कंट्रोल ये लोग करें, इस लेवल का कंट्रोल ये लोग करें, और इसका पूरा इंटीग्रेशन हो जाए, फिर सब एक साथ मिलके अपने अपने हिस्सेदारी को जोड़ लें, पॉजिटिव कर लें। सो ये है। सो ऑथोरिटी शुड फ्लो फ्रॉम द लॉ ऑफ द सिचुएशन। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि ऐसा ना हो कि एक हायर पोजीशन पे कोई व्यक्ति आके बैठ गया है एंड दैट पर्सन इज जस्ट ऑर्डरिंग एंड is not concerned and do not know anything. For an example, if there is a fire in the building, the best person to save people would not be the person who would be the owner of the building, rather somebody who is the firefighter. पुलिस की टीम में फायर ब्रिगेड वाला व्यक्ति होगा सबसे ज्यादा, राइट। सो ऑथोरिटी शुड फॉलो फ्रॉम द लॉ ऑफ द सिचुएशन। अगर फायर लगी हुई है तो फायर पुलिस को आना चाहिए, ना कि बिल्डिंग के ओनर को। सो लीडरशिप एज एबिलिटी टू क्रिएट फंक्शनल यूनिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा लीडरशिप क्या है, एबिलिटी है सारे फंक्शंस को यूनाइट करके आगे ले जाने को। उनके अनुसार द लीडर वाज अ पर्सन हु कैन सी थ्रू द सिचुएशन, हु कैन लीड फ्रॉम वन फेज टू अनदर। तो प्रॉपर कोरिलेशन होना चाहिए, कोरिलेशन ऑफ कंट्रोल इंस्टेड ऑफ पर्सनल पावर टू कमांड बेस्ड ऑन पोजीशन। तो ये नहीं है कि आपको एक सीट मिल गई है, आप ऑफिसर बन गए हैं and so you are officer, then you are giving command and do not know anything. Rather she said correlation of control जो बेहतर ढंग से कर सके, और जो किसी भी जगह पर चाहे वो हायरार्की में नीचे है, but if one knows the person thing better, then the authority and command should lie with that person. For an example, if let us suppose in a military example, एक व्यक्ति है and he is known for डिफ्यूजिंग बॉम्ब्स। सो अगर मेजर जनरल भी है और डिफ्यूज करना है बॉम्ब को, तो दैट टाइम जो लीडरशिप है, जो अथॉरिटी है, जो कमांड है, जो पावर है, वो बॉम्ब डिफ्यूज करने वाले एग्जीक्यूटिव के हाथ में है और होनी चाहिए। यही इनका मतलब था इससे। So definitely she was a person who was well ahead of time. She was thinking about group dynamics. She was thinking about law of the situation. She was thinking about that leadership can lie anywhere. So there are a lot of criticism also of the scientific management and other theories, administrative management theory. So we are particularly focusing on the administrative management theory over here. So
क्लासिकल प्रिंसिपल्स आर लैकिंग इन स्पेसिफिसिटी, वो एक जर्नल प्रिंसिपल दे दिए हैं, स्पेसिफिक नहीं है, इससे हमें प्रैक्टिसिंग एडमिनिस्ट्रेटर को दिक्कत होती है। सो ये इसका क्रिटिसिज्म है। बहुत सारे जो इनके प्रिंसिपल्स हैं वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, जैसे स्पैन ऑफ कंट्रोल और हायरार्की। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है कि जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, ये लेवल जूनियर हैं और ये एक सीनियर है। अगर इस व्यक्ति को हैव टू गिव ऑर्डर्स टू दीज 4, दिस इज मैनेजेबल। एंड इमेजिन हर किसी लेवल के नीचे 4 ही लोग हैं, so that is something manageable. But now you have increased span of control को आपने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिए हैं लेवल। At the same time you are saying that this should not be increased too much, but you have increased it now 7 कर दिया है, this person would be confused। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि ये हायरार्की जो होगी 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल, ये भी ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये भी कहा गया है। पर अगर आप स्पैन ऑफ कंट्रोल को छोटा करते हो तो ये बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और बढ़ाते हो तो खुद ये बंदा स्पैन ऑफ कंट्रोल को मैनेज नहीं कर पाएगा। सो दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट जहां पर स्पैन ऑफ कंट्रोल और हायरार्की में ऐसे और भी पेयर्स में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इनके प्रिंसिपल, उसमें क्या है, दिक्कतें हैं। सो दैट इज व्हाई हर्बर्ट साइमन कॉल्ड देम स्केदिंग इफेक्ट, उन पे अटैक किया, नो मोर देम प्रोवर्ब, कि ये तो मुहावरों की तरह हैं, 9 2 11 हो जाना, 3 तिगाड़ा काम बगड़ा, उनका कोई काम नहीं है, राइट। एंड दे एग्जिस्ट इन पेयर्स एंड इक्वली अपोजिट एंड कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। सो गुलिक, जो लूथर गुलिक ने और हमने पढ़ा था कि प्रोसेस के अनुसार, प्लेस के अनुसार, पर्सन के अनुसार ऐसे डिपार्टमेंटलाइजेशन होने चाहिए 4 P's के अनुसार, तो उसको साइमन ने कहा कि इसमें तो एम्बिग्यूटी है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज सेम ऑर्गेनाइजेशन in which departmentalization has been done according to the function. For example, military, उसके अंदर people भी involved हो सकते हैं, जैसे widows, military war widows। अब मिलिट्री के लिए एक आपने फंक्शन वाइज डिपार्टमेंट बना दिया, पर अब आप वॉर विडोज एज अ पर्सन वाइज भी बनाएंगे क्या, तो ओवरलैपिंग है, यही एम्बिग्यूटी है। क्लासिकल थ्योरी मोस्ट सीवियरली क्रिटिसाइज हुई है बिहेवियरल साइंटिस्ट के द्वारा। इन्होंने कहा है कि लोगों को तो ध्यान ही नहीं रखा गया, देयर वर नो ह्यूमन बीइंग्स in classical model, only efficiency and only the aspect of structures, hierarchy, unity of command, unity of direction, chain of command, scalar chain, ये सब था। Where are the people are missing, तो इसीलिए human nature के incompatible है। हर्बर्ट साइमन और मार्श ने कहा मशीन मॉडल है, no idea about human beings, this is a machine model। So वॉरेन बेनिस ने कहा कि organization without people, again the same thing, in other words organization without people, there are no, organization has to be men, material aspect, machinery, everything, but there is no men in them। पर फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिकल मॉडल जो है, और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स प्रॉपर इवैल्यूएशन हैज टू बी मेड हिस्टोरिकल टाइम, जब ये हो रही थी, जब ये क्रिएशन हो रहा था 1910 20s जब हो रहा था, वहां देखना है, उस समय के अमेरिका को देखना है। सो नेचुरली ये इनकी जो कंडीशनिंग हुई थी, दे वर थिंकिंग इन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम। बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन रही हैं, उनका मुख्य उद्देश्य है टू इंक्रीज मैक्सिमम आउटपुट। सो उस समय की सोसाइटी और उस समय की टेक्नोलॉजी जो थी उसके अनुसार देखना चाहिए। इतनी बढ़िया भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कंप्यूटर्स नहीं आए थे। इस थ्योरी ने पहला अप्रोक्सीमेशन किया, पहला आइडिया लगाया डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट करने के लिए, ये इसका पॉजिटिव है। आइडिया जैसे यूनिटी ऑफ कमांड, डेलीगेशन करना अथॉरिटी का, स्पैन ऑफ कंट्रोल, डिपार्टमेंट के अनुसार बांट लेना, ये आज भी बहुत ज्यादा यूज होता है। देखिए आप डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स DEA और डीपम जो डिसइन्वेस्टमेंट के लिए और पब्लिक असेट के मैनेजमेंट के लिए जो डिपार्टमेंट है विद इन द हमारी फिनेंस मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री के अंदर है, आज भी चल रहे हैं। स्टेट लेवल पे सारे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, एजुकेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट, वेटनरी हेल्थ डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स में होते ही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स में डिपार्टमेंट हैं, ये आज भी हैं। और बेसिक फ्रेमवर्क ये आज की थ्योरीज के लिए, आज के मैनेजमेंट के लिए भी चल रहा है। आज के मैनेजर भी हायरार्की, स्ट्रक्चर,
चेन ऑफ कमांड का यूज करते हैं, आज भी हो रहा है। और देखिए ये थ्योरीज ऑफ क्लासिकल स्कूल थी, ये आर प्रिंसिपल्स, ये बहुत ज्यादा ब्रॉडली चेक्ड नहीं थी, ये कुछ प्रिंसिपल्स थे, बेसिक अजम्पशंस थे। दे आर प्रैक्टिस ड्राइव्ड प्रिस्क्रिप्शन, और ये कहां पर, जैसे टेलर की ही बात कर लें तो वो स्टील कंपनीज में, कोल कंपनीज में काम कर रहे हैं और वहां पर से आइडियाज को ला रहे हैं। सो ये देवर प्रैक्टिस डिराइव्ड प्रिस्क्रिप्शंस थे, जो कुछ लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग में या किसी डिपार्टमेंट में जाके काम किया। और slowly development in the nature of the work, how nature has evolved, more AI आ गया है और आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ गया, इससे बहुत बड़ा रेडिकल चेंज हो गया है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आज। सो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज में भी चेंज हो गया है। अब nobody could have imagined that we can work from home, that is a change. So while doing the lot of criticism, we need to understand that too much of criticism is bad criticism. So they were placed in their own time and space with the whatever technology and whatever conditioning they have according to that time. Apart from this, so this is the end of the chapter 4 that we have completed. For such more videos, handwritten notes, answer writing practice, and also the model answers, also crux, and also sharing of whatever new things are coming in terms of इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में क्या आ रहा है, जिससे कि हम अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई को बेहतर कर सकें, न्यूज़पेपर्स को कैसे लिंक करना है, इन सब चीज़ों के लिए और भी वॉट एवर डाउट्स यू हैव, यू कैन कम एंड ज्वाइन माई चैनल, दैट इज टेलीग्राम स्पेस public ad by Shekhar. This is the channel, and also Instagram. You can have contact with me and I will definitely, as a teacher, would like to help you. So on this note, we are ending this lecture. Let us see you in the next lecture. That would be on the chapter number 5. Till then, goodbye. Jai Hind, Jai Bharat.